Hello, friends. My name is Rohit Gochar. First of all, let's uh, can give me a thumbs up if I'm audible. Am I audible to you? Hello, hello, hello. Thank you so much. Let's start our session. My name is Rohit Gochar, and I have secured All India rank 599 in UPSC CSE 2025 examination. And so, first, let me introduce myself. Then we are going to share the strategy of prelims, mains, and interview and sources, and then we are going to address all your doubts. So, friends, my full name is Rohit Gochar, and I come from Jaipur district of Rajasthan, from where I did my schooling. After that, I did my graduation in mechanical engineering from SRM University, Chennai. And in the year 2028, I appeared for the first time in UPSC prelims. This 2025 attempt was my fifth attempt and second personality test. And fortunately, with God's grace, with the blessings of my teachers and my family and my friends, I secured this rank of 599. And this is my UPSC journey. Briefly, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, so I am instructed that I can talk in both the languages, Hindi and English. So अगर मैं आपको बताना चाहूँ basically about my UPSC journey, so I was not able to clear my prelims in my first two attempts. Though I cleared my GS paper in second attempt, 2021, but I was not able to clear the CSET. So after that, in 2023 attempt, I reached up to the interview personality test stage, but I was not lucky enough to see my name in the final PDF. And then again, I failed in prelims in 2024. And in 2025, the result is in front of you, and I secured All India rank 599. So this was my UPSC journey. And so what you can take away from me is that how to handle CSAT, how to score in prelims, because I cleared the Indian Forest Service cutoff in 2023. And in this year also, I was scoring well above 110 marks according to the answer keys. I have not received my mark sheet till now because I also opted for Indian Forest Service. So the mark sheet is yet to come. And my marks of the recommended candidates are on online, so you can check it out on the UPSC website. I scored 770 marks in my mains and 126 marks in my personality test. So this is my score. So now let's first of all let's jump on to the strategy part. So first, the most critical and the most difficult stage which I consider is the UPSC prelims. So let's talk about it. See, friends, in UPSC prelims, first I'll talk about the sources which are very common. It's all over the internet, what books to read, what not to read. But I'll just repeat it that because that my sources are also almost same जो बाकी सब aspirants के थे. तो prelims के लिए okay, I will talk in Hindi also for sure. प्रीलिम्स के लिए दोस्तों सोर्सेज अगर मैं बात करूं आपसे, प्रीलिम्स के लिए मैं आपको सिंपल स्ट्रेटेजी अगर शेयर करूं, सो आई यूज टू फोकस ऑन मोर ऑन कोर सेक्शन, बिकॉज इफ यू एनालाइज पिछले 10 साल के पेपर आप देखेंगे तो अराउंड 60 to 65 क्वेश्चंस जो आते हैं, 60 to 65 क्वेश्चंस डायरेक्टली कम फ्रॉम लिमिटेड सोर्सेज जो 4 से 5 किताबें विच आर वेरी स्टैंडर्ड, विच आर नॉट वेरी यूनिक बुक्स. Okay, like Lakshmikant is there. I'm Lakshmikant for polity, R.S. Sharma for ancient history, and then I referred Nitin Singhania for art and culture, and for modern history there is a very popular book, Spectrum by IPS Sir Rajiv Ahir sir. Then for geography, I read 6 to 12 geography, NCERT. One of the main reasons for 6 to 12 geography was कि मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है, सो मुझे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, रूट्स फाउंडेशन अच्छा चाहिए था. एंड फॉर इकोनॉमी आई रेफर टू माय कोचिंग नोट्स एंड एज वेल एज करंट अफेयर्स, जो कि मैगजीन आती है लास्ट के एंड में, और उसमें जो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का कंपाइलेशन होता है उससे
टच अप करना होता है, जो कि आता है लाइक द फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट और एनी ऑफ द जो डेटा और जो स्टैटिस्टिक्स चल रहे होते हैं उसका. ओके, सो दीज आर द बेसिक सोर्सेस. हिस्ट्री के अंदर स्पेशली आई वांट टू गिव मेंशन ऑफ वन बुक, पूनम दलाल दहिया, जो कि मैंने एंशिएंट मिडिवल के लिए रेफर करी, बट इट्स वेरी इट्स अ टू एज स्वॉर्ड. आपको नुकसान भी कर सकती है. कैसे? बिकॉज इट इज वेरी डिटेल्ड बुक. तो आपको उसको कहाँ यूज करना है? उसको आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करना है, क्रोनोलॉजी समझने के लिए यूज करना है. क्रोनोलॉजी उसके अंदर बहुत अच्छे से दी हुई है. एंड आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड मिडिवल इंडिया, बहुत अच्छे से मुझे कहीं मिल नहीं रहा था. सो पूनम दलाल दहिया बिकेम द सोर्स फॉर मी फॉर मिडिवल इंडिया एंड आई रेफर टू इट. इट्स अ गुड बुक, इजी लैंग्वेज, उसमें क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से दी है. सो आपको अगर हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, तो वो समय के साथ उस बुक से आपको समझ में आ जाएगी, स्पेशली द मिडिवल इंडिया पार्ट. बट उसके अंदर लाइक वाकाटाकाज आर देयर, देन पारामाराज ऑफ मालवा इज देयर, तो उनको बहुत डीप में कवर किया. सो आपको इतना डीप में कवर नहीं करना है. सो यू मस्ट नो हाउ टू यूज दैट बुक. सो यू नीड टू बी फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पेपर आता कैसे है. चलिए प्रीलिम्स के लिए पहले मैं आपको सिंपल सी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं. सी सेट के लिए मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा. माई सी सेट इज वीक इफ एंड I failed in the first two CSAT and I cleared next three with good marks, and I cleared one of the toughest CSAT also 2023. So use my strategy, it will work, definitely it will work. पर उस पे अभी आते हैं, पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं. सी फ्रेंड्स, आई यूज टू, पहले प्रीलिम्स में हमारे बीच में क्या डिलेमा रहता है कि मुझे करंट अफेयर्स प्लस कोर को कवर करना है. मैं सबसे पहले प्रायोरिटी देता था कोर सेक्शन को, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज क्लियर, दैट इज समथिंग विच इज डेफिनेटली गोइंग टू कम. ओके, सो उसको मैं प्रायोरिटी देता था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज टू अश्योर दीज 650 to 55 to 60 क्वेश्चंस, इनके लिए जो बुक्स हैं वो फिक्स है. नाउ द थिंग इज कि हाउ टू रीड दीज बुक्स, जो मैं सोर्सेज बता चुका हूं आपको. तो मैं क्या करता था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द बुक. उसमें एक चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट इज अ चैप्टर इन लक्ष्मीकांत, जो मैंने पढ़ लिया. सो नाउ आई एम गोइंग टू गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन, आपको कहीं भी मिल जाएगा. प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, उसमें सीएपीएफ के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. घटना चक्र इज अ बुक जहां पे आपको सीएपीएफ के, यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. यू ओपन दैट चैप्टर, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर, देन गो टू नेक्स्ट चैप्टर, रीड दैट चैप्टर, सॉल्व द क्वेश्चंस, कम अगेन. इससे क्या होगा दोस्तों, द नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू रीड a question, you are going to read a topic, so your brain is going to remember that this question came in 2021, 2029, 2019, 2018. तो आपका ब्रेन एज ए एग्जामिनर काम करेगा और आप ट्रैप से कम फंसेंगे, ट्रैप में कम फंसेंगे. सो दिस इज द स्ट्रेटेजी. जब मिस्टेक बच्चे करते हैं, वो दे रीड वन बुक मल्टीपल टाइम्स, विच इज गुड, बट दिस इट हैज टू बी फॉलोड बाय सॉल्विंग पीवाईक्यूज. सिंपल भाषा में कहूं तो आपको पहले किताब पढ़नी है, उसके बाद सवाल लगाने, पहले किताब पढ़नी है, फिर सवाल लगाने, और चैप्टर वाइज को कंप्लीट करते जाना है. इसके फायदे बताता हूं आपको. एक तो साइकोलॉजिकल टिक, ग्रीन टिक, दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक इन एंड आउट. मैंने वो चैप्टर पढ़ा, उस पर सारे सवाल जो आज दिन तक आए हैं 10 साल में, 20 साल में, वो सारे लगा दिए. द साइकोलॉजिकल थिंग दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक इन एंड आउट. दूसरा, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, तो यू विल बी अवेयर कि ऐसा सवाल बन सकता है. यू कंप्लीट द एंटायर बुक लाइक दिस. हिस्ट्री की बात करें तो आप पहले स्टार्ट फ्रॉम द लिथिक एज, पेलियोलिथिक एज, एंड देन स्टोन एज, उसके बाद आईवीसी, देन वैदिक एज, और साथ ही के साथ इनके सवाल लगाते जाने हैं. ओके, डू नॉट डू द मिस्टेक कि एक किताब पूरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद उसको दूसरी बार स्टार्ट कर दिया विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन. डू नॉट डू दिस मिस्टेक, बिकॉज आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, जब आप फिर से दूसरी बार उस किताब को पढ़ेंगे, उस किताब का नजरिया बदल जाएगा. Your brain will start functioning in a different way. Your brain will start functioning like an examiner. कि सवाल बन, इस टॉपिक से और क्या सवाल बन सकते हैं. Okay, so this is the thing. How to, अब आते हैं सेकंड पे, how to solve the paper in the examination. First question is, जो मुझे frequently आता है, is the how many questions to attempt. See friends, कुछ समय से एक दो क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, और 2 से 3 सवालों का जो आंसर है वो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. सो इट्स अ रिस्की गेम. सो व्हाट आई डू इज, आई ऑलवेज अटेम्प्ट मोर देन 85 क्वेश्चंस. 85 to 90 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करके आता हूँ. इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेटेजी. लाइक इफ यू आर 100% श्योर कि मैं तो 670 करके आया हूँ, 73 क्वेश्चंस करके आया हूँ, एंड 100% उसमें 60 ठीक हो जाएगा, सो दैट इज अप टू यू. बट दैट इज अ रिस्की गेम नाउ डेज, बिकॉज
कुछ सवाल डिलीट हो जाते हैं, कुछ सवालों के आंसर चेंज हो जाते हैं. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके आइए सो दैट यू आर इन अ सेफ जोन. ओके, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. जब आप पेपर कर रहे हैं दोस्तों, start your paper from the very first question. Why? Because you have to face all the questions. Stay calm in the UPSC prelims examination hall. In the first iteration, read all the questions, eliminate the options, and mark in the OMR जो आपको 100% sure है. Okay, when you by the time you finish 100 questions, आपको मेरे हिसाब से 20 to 25 questions ऐसे आ जाएंगे, and around 30 to 40 questions में आप 50-50 पे पहुंच जाओगे. In the second reading, friends, the mistake which we do is overthinking in the examination hall. कि 50-50 में मैंने पहले B सोचा था, पहले D. अगर आपको पहले दिमाग में B आया था, go for B. Your first intuition is right. क्योंकि पहली फैक्ट जो आपके दिमाग में आता है वो हमेशा सही होता है. ओके, सो डू नॉट ओवरथिंक. सेकंड आइटरेशन में आपने जो सोचा था वैसे भी आप आंसर वही करोगे. आप वो करके आइए गट फीलिंग के साथ, वो आंसर सही होगा. बिकॉज यू हैव थॉट कि ये आंसर क्यों सही है, ये ऑप्शंस क्यों सही है, बी और डी क्यों सही है. ओके, देयर इज नो नीड ऑफ थर्ड. आप सेकंड में ही गेम खत्म कर सकते हैं. देयर इज नो नीड ऑफ थर्ड, बट थर्ड आप तब जा सकते हैं बिकॉज इफ यू आर नॉट क्रॉसिंग 80 क्वेश्चंस, यू गो फॉर थर्ड रीडिंग. उसमें अगर आप जहां पे 33% मतलब जहां आप एक ही एलिमिनेट कर पाए हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट मोर. अगर आपका गट फीलिंग है कि उसको अटेम्प्ट करना चाहिए तो उसको करना चाहिए. मैं कौन से क्वेश्चंस को स्किप करता था? जिस क्वेश्चन में मैं एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहा उसको मैं स्किप कर देता था. आपको भी ऐसा ही करना चाहिए. डू नॉट यू नो डिपेंड टू मच ऑन लक. उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना है. चलिए, कितने अटेम्प्ट कर लें, हमारा सेक्शन कंप्लीट कर दिया हमने, सोर्सेज देख लिए. अच्छा दोस्तों, प्रीलिम्स के पेपर के अंदर देयर आर सम क्वेश्चंस विच आर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, जिसके लिए कोई सिलेबस की, कोई टेक्निक की, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं होती. जो आपने जीएस में सिलेबस अभी तक कंप्लीट किया है उसके लॉजिक पे आप सवाल से बना सकते हैं. अब इसमें मैं ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं. आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड ट्रिक, आई एम यूजिंग द वर्ड लॉजिक एंड द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी. It's like in 2025 there was a question that consider the following statement about the critical minerals, and one of the statement was that India is resource rich in all the 30 minerals. Okay, so this is the UPSC language. It's not possible for any country to become resource rich in all the 30 critical minerals. Okay, so that is the language of UPSC. अब इसके लिए कोई नॉलेज की आवश्यकता नहीं थी, कोई नीड नहीं थी. इसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत थी. There was one more question that all the UAVs can do vertical hovering, all the UAVs require runway, and all the UAVs ABC, ऐसा कुछ था. क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? there will be some drone जो vertical hovering नहीं कर पाता होगा. There will be some drone possibility होगी जो vertical take off नहीं कर सकता, उसको runway की जरूरत होती है. So the answer was none of the above was correct. So these questions doesn't require science and tech की knowledge. This question was not from science and tech. This was pure logic question. प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप काम रहेंगी सिचुएशन में तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे. ओके, ऑलवेज एवरी ईयर 7 to 8 क्वेश्चंस आर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन. दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स विच यू मस्ट कैच, और इनमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बेसिक लॉजिक इस्तेमाल करना है. ओके, चलिए, सोर्सेज आर डन, स्ट्रैटेजी इज डन. मैंने आपको बताया कि मैं पहले कोर सेक्शन पे ध्यान देता हूं जिसमें 60 to 65 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. Simply use the logic, my friends. I have 6 books. 6 books मुझे पता है, उसमें से 60 questions आने ही हैं. And on the other side, there is a bundle of current affairs जिसमें 2000 से 3000 pages हैं. और मुझे नहीं पता, श्योरिटी नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आएगा कि नहीं. तो and that is a blunder which I made in my first attempt. I focused too much on the current affair. और कोर के क्वेश्चंस आप गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटर सही करेंगे. ओके, आउट ऑफ दिस 60 क्वेश्चंस अगर आप 45 सही करके आते हैं एंड 20 क्वेश्चंस आपके बाकी 10 to 15 क्वेश्चंस 15 to 20 क्वेश्चंस आपके बाकी सेक्शन से सही होते हैं एंड यू क्रॉस द करेक्ट क्वेश्चन मार्क ऑफ 60 प्लस, यू आर इन अ वेरी सेफ जोन. आप मेंस का प्रीलिम्स का रिजल्ट के इंतजार किए बिना मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, बिकॉज 100 प्लस स्कोर इज अ वेरी सेफ स्कोर नाउअडेज. ओके, लेट्स टॉक लाइक कंसिडरिंग ऑल द अटेम्प्ट्स जो कि अभी ट्रेंड चल रहा है फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 years. मेंस की बात कर लेते हैं.
coming to the mains part, I think now let's talk about current affairs. मेरे लिए prelims में current affairs क्या significance रखता था, मैं कहाँ से cover करता था. So first of all, I used to cover current affairs for three topics, three subjects. That is economy, science and technology, and environment. इसके अलावा मैं current affairs नहीं देखता था. Okay, these three subjects जहाँ पे मैं focus करता था. Reason सब ये बहुत ज़्यादा current specific topics हैं. Second reason is this कि अगर मैं restricted रखूंगा अपने sources को तीन ही sections पे, because history में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर है जिस जो रिसेंटली ऐड हुई है, तो दैट इज नॉट अ करंट अफेयर, दैट इज समथिंग विच यू मस्ट नो. ओके, एंड पॉलिटी के अंदर कोई नया अमेंडमेंट आया है, तो दैट इज नॉट अ करंट अफेयर, दैट इज समथिंग विच यू मस्ट नो, दैट इज अ अमेंडमेंट. या फिर कोई इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, या फिर कोई कुछ भी अमेंड होके कुछ नया सेक्शन वगैरह कुछ भी कोई लॉ न्यूज में है, तो वो आप याद रखिए. Talking about the government schemes, friends, that is, it has a low cost benefit ratio. Okay, like उसमें बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा एंड यू आर नॉट श्योर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत फैक्चुअल आ सकते हैं, 2,000 रुपए मिलेंगे, 3,000 रुपए मिलेंगे. सो उसके पीछे आप भागने की जगह आप 60 to 65 क्वेश्चंस पे को कॉम्प्रोमाइज, उनको वल्नरेबिलिटी में नहीं डाल सकते कि अगर वो मिस हो जाएगा तो आप क्या करेंगे. Okay, so focus on this core section more. I'm repeating again and again, I use this word, बहुत बार मैंने ये इस्तेमाल किया है कि core section. So again and again I'm going to use this word for prelims कि core के 60 questions को आपको target करना है, then you have to jump to the current affairs. अभी हम जो date है आज, वो date है 21st March. We are in March, we have April and May. Okay, सो अभी तक आपका अभी जो टाइम बचा है आपका, इसमें आप मल्टीपल एटलीस्ट आपको 2 बार रिवाइज करना है वो कोर सेक्शन, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है. ओके, सो दैट इज द थिंग. मेंस के लिए जो सोर्सेज मैं आपको बताता हूँ, मेंस के लिए मैंने क्या यूज किया था. लेट्स कम टू द मेंस. GS1, GS2, GS3, GS4. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शून्य आईएएस की 8 years की सॉल्व्ड बुक है. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच हेल्प मी. शून्य आईएएस की 8 years की सॉल्व्ड बुक है विच हेल्प मी टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट आंसर. ओके, इट इज अ सुपर कंटेंट, स्पेशली द आंसर्स रिटन आफ्टर 2020, उससे आपको समझ में आएगा. सो हाउ आई came out of that inertia of writing answers for mains is like what I used to do. I used to take 5 questions of PYQ, जिसमें 5 सवाल होंगे, कुछ 5 नंबर 10 नंबर के होंगे, कोई भी 15 नंबर का होगा. और उन 5 सवालों को मैं उस शून्य आईएएस की किताब से याद करता था कि हाउ दिस बुक इज राइटिंग इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. दिस इज आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स. ओके, दिस इज अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट 2023 का मेंस. अभी तो मुझे इनसाइट्स मिल गए थे, अभी तक तो मैंने 2025 तक तो मैंने पूरे 10 साल के पीवाईक्यूज को मल्टीपल टाइम्स लिख लिया था. ओके, सो वो 5 सवाल में पढ़ता था एंड मैं उस किताब को बंद करता था एंड देन आई यूज्ड टू राइट दोस 5 आंसर्स इन लिमिटेड टाइम, 7 minutes फॉर द 10 मार्कर एंड 10 minutes फॉर द 15 मार्कर. तो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस हुई, मेरे पीवाईक्यूज भी पूरे हुए, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस हुई और मेरा हाथ भी चल रहा था. सो my muscle memory mein I started writing, so I was getting that confidence that I am writing something. I don't, मतलब doesn't matter कि मैं cheating करके लिख रहा हूँ, मैं कहीं से याद करके लिख रहा हूँ, but I started writing. The magic of this exercise was कि after just 1 month I was able to cover approximately 4 से 5 साल के सारे PYQs. okay, line से. So I got so much confidence कि मैंने 5 साल के PYQs लिख लिए हैं. okay, second thing, फ्रेंड्स, जो मेंस का सिलेबस है इट इज वेरी मच डिटेल्ड. वो बहुत ही डिटेल्ड है, प्रीलिम्स की तरह नहीं है, बहुत ही एम्बिगुअस नहीं है कि उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है कि बहुत ब्रॉड टर्म्स, अम्ब्रेला टर्म्स यूज किए. उसके अंदर दे हैव मेंशन्ड अर्बनाइजेशन, वुमेन एज अ टॉपिक, देन ग्लोबलाइजेशन इन द पेपर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दैट टाइम पीरियड आल्सो. सो इट्स वेरी एंड प्लस वी हैव PYQs. सो इफ देयर इज अ टॉपिक एंड वी हैव PYQs, सेग्रीगेशन आपको इंटरनेट पे, टेलीग्राम पे हर जगह मिल जाएगा. तो अगर हमारे पास वो है तो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. लाइक आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी जनरल, बट अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 सवाल थीम्स जो मेंस में आते हैं इन ईच GS आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं.
डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड्स हैं उस पर। इतना डिटेल होता है मेंस का सिलेबस। तो मेंस सबसे ज्यादा जो रिक्वायर होता है दोस्तों, वो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। डू नॉट स्टॉप राइटिंग। लिखना बंद मत करिएगा, कुछ भी हो जाए। आपको 2 सवाल रोज लिखने हैं। भले प्रीलिम्स में 1 महीना बचा है, तब भी 2 सवाल आपको रोज लिखने हैं। रीजन बीइंग, 1 घंटा ही तो लगेगा। 1 घंटा ही लगेगा, उससे ज्यादा तो लगेगा नहीं। सो दैट इज द थिंग। GS1, GS2, GS3, GS4 की बात कर लेते हैं। GS1 के अंदर तो आई स्टडीड हिस्ट्री क्वाइट डिटेल वे में। पूनम दलाल भैया से ही पढ़ लिया था, नितिन सिंघानिया से ही पढ़ लिया था, RS शर्मा से भी, स्पेक्ट्रम से। तो मेरे पास कंटेंट अवेलेबल था। इसके लिए मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली और ना ही कोई किताब रेफर करी। आई स्टार्टेड राइटिंग। PYQ को सॉल्व करना मैंने स्टार्ट कर दिया। इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आई रेड द रेड बुक ऑफ फोरम IAS। फोरम IAS की जो इंडियन सोसाइटी की बुक है, मैंने वो रेफर करी थी। इट इज अ वेरी गुड कंटेंट। नॉट जस्ट कि वहां से आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इट हैज गिवन द टॉपिक, इट हैज कवर्ड द टॉपिक्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज पॉइंट स्पेसिफिक। उसने पॉइंट्स में आंसर एक्सप्लेन किया हुआ है विद गुड डेटा एंड गुड एग्जांपल्स। ओके, सो दैट इज समथिंग फॉर इंडियन सोसाइटी। ज्योग्राफी के लिए मुझे नीड नहीं थी बिकॉज माई ऑप्शनल इज ज्योग्राफी, सो वहां से मैं कर लेता था। GS2 की बात करें, एंटायर GS2 आई रेफर टू शून्य IAS का GS2 का बुक। ओके, GS2 का बुक आई यूज टू रीड द कंटेंट। लाइक फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन है, गवर्नर एज अ टॉपिक है, प्रेसिडेंट एज अ टॉपिक है। तो उसको मैं पढ़ता था, वो कंटेंट। एंड the Shoonya IAS notes are very well covered. They have given data, they have given points, they have given advantages, disadvantages and recommendations of the committees and conclusion. तो आपको पूरा they have covered the entire topic wholesome. थोड़ी थिक है, थोड़ी किताब थोड़ी सी लेंदी है, पर लेकिन वो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बना मेरे लिए। मैंने और कोई रेफर नहीं किया। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, in 2023 also I scored 117 marks in GS2, and this year 2025 also I have scored 113 marks in GS2. So मेरा काम वहां से चल गया था and I was able to score well. Okay, GS3 की बात करें, GS3 के अंदर मेंस में I refer to शिविन चौधरी सर, सारथी IAS में। उनसे मैंने GS3 में क्या किया। अब उसमें मैंने जो GS3 में किया, फ्रेंड्स आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द स्ट्रेटेजी, फिर मैं आपके कमेंट्स का भी जवाब दूंगा। ओके, उसमें शिवन चौधरी सर से मैंने एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर ये पढ़े हैं। ओके, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर ये पढ़े हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी पार्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट आई डिड ऑन माय ओन फ्रॉम शून्य IAS की किताब। ओके, और एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ इकोनॉमी, बट एग्रीकल्चर मैंने शिवन चौधरी सर से, सारथी IAS से किया था। ओके, टॉकिंग अबाउट GS4, फ्रेंड्स आई हैव नॉट टेकन एनी कोचिंग फॉर GS4। मैंने कभी कोचिंग नहीं ली है GS4 की। ऑब्वियसली माय फाउंडेशन कोचिंग वाज देयर। मेरे कोचिंग के नोट्स एंड चैट GPT, चैट GPT इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर एथिक्स। अगर आप उसको कमांड देंगे तो चैट GPT से आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे, आपको लेटेस्ट एग्जांपल्स मिलेंगे। बाकी आप द बेटर इंडिया जो फेसबुक पे पेज है, एंड देन टेलीग्राम से बहुत सारे चैनल्स हैं, एंड न्यूज पेपर से आप एग्जांपल निकालिए। सम IAS ऑफिसर इज डूइंग अ गुड जॉब, सम बेटर एग्जांपल्स, देयर इज कीर्ति कार्ड इन मध्य प्रदेश। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। और चैट GPT आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, बिकॉज वो उस स्टीरियोटाइप जो पहले से इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है उसको ब्रेक करता है, और आपको कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स देता है, डिफरेंट कीवर्ड्स देता है विच आर वेरी मच प्रिसाइज एंड एप्लीकेबल टू एथिक्स पेपर। और आपको कीवर्ड्स बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। स्ट्रेटेजी फॉर GS4 इज, आप दोस्तों कोई भी पॉइंट को एग्जांपल के बिना मत छोड़िएगा, बिकॉज एथिक्स के अंदर बहुत ही फिलोसफिकल बातें होती है। अगर हम उसको एग्जांपल से सब्सटेंशिएट नहीं करेंगे तो वो एक ओपन एंडेड टॉपिक रहता है। और हम जब एग्जाम्पल लिख देते हैं किसी सिविल सर्वेंट का या फिर हिस्ट्री से, आप हिस्ट्री का एग्जाम्पल लीजिए, रामायण के एग्जाम्पल दीजिए, महाभारत के एग्जाम्पल दीजिए, हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां से एग्जाम्पल दीजिए। एथिक्स के एग्जाम्पल आप हिस्ट्री, मिडिवल इंडिया में कहीं से भी उठा सकते हैं। ओके, सो दैट इज समथिंग यू कैन यूज। डाइवर्सिफाई करने के लिए आप हिस्ट्री यूज करिए एग्जाम्पल्स के अंदर, महाभारत को यूज करिए, भगवत गीता को यूज करिए एग्जाम्पल्स के लिए, कर्मा की थ्योरी, रिटा, ऋण,
इनकी थ्योरीज को यूज करिए, श्लोक यूज करिए, एंड द भक्ति योग यूज करिए, ज्ञान योग यूज करिए, ये बहुत काम आते हैं. ओके, इन द फाइट फॉर धर्मा, कर्मा फिलोसफी, कर्मान्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सब आप यूज कर सकते हैं. एंड आपको ये निष्काम कर्मा वाली फिलोसफी आपको बहुत काम आएगी. ये आइडिया आपको बहुत काम आएगा पेपर में. इट विल डाइवर्सिफाई योर एथिक्स पेपर. ओके, सो मस्ट यूज भगवत गीता एंड रामायण एग्जाम्पल्स इन एथिक्स. और हिस्ट्री से आप एग्जाम्पल लीजिएगा, तो माइथोलॉजी से एग्जाम्पल हो गया, हिस्ट्री से एग्जाम्पल हो गया, करंट से एग्जाम्पल हो गया, सिविल सर्वेंट के एग्जाम्पल हो गए, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज के एग्जाम्पल हो गए, इंटरनेशनल रिलेशंस के एग्जाम्पल हो गए. सो दीज आर द थीम्स. और साइंस एंड टेक का सवाल है, एआई एंड एथिक्स है, उसके अंदर तो हम डाइवर्सिफाई कर ही सकते हैं. उसके अंदर तो रेस्पॉन्सिबल एआई एंड ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, बहुत सारे पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स अभी अवेलेबल हैं. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स आर आल्सो देयर. ओके, दिस इज जीएस 1, 2, 3 एंड 4 के सोर्सेज एंड वे ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर. अब आते हैं हाउ टू अटेम्प्ट द मेंस पेपर पे. तो दोस्तों मैं क्या करता था, द फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू प्रैक्टिस व्हाइल राइटिंग मेंस का टेस्ट सीरीज, वो ये था कि मैं पेपर को कंप्लीट कर सकूं. और ये मेरे एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी हुआ. आई वॉज एबल टू कंप्लीट ऑल माई मेन्स पेपर 5 मिनट पहले. और उसका मेन रीजन ये था दैट आई had 4 copies for all the 4 GS, GS1, GS2, GS3, GS4. 5वीं किताब नहीं थी मेरे पास. So I had introduction, body and conclusion well prepared in advance. मेरे पास एक टॉपिक से, एक थीम से मल्टीपल इंट्रोडक्शंस थे. अब मुझे बस मॉडिफाई करना था कि उस डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में ये इंट्रोडक्शन सेट हो रहा है कि नहीं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट माय एसे के लिए मैं आपको बता देता हूँ. ऐसे के लिए सो स्पेसिफिकली तो मैंने कोई कोचिंग, मतलब किसी स्पेसिफिक टारगेट पे फोकस नहीं किया. माय एसे स्कोर दिस ईयर इज 107. I'm not able to recall the name of the ma'am. It's I'm not. टेलीग्राम पे एक चैनल है जिनके मैं I'm not able to recall. अगर उनका नाम आएगा तो उनके एसेज हैं जो मैं रेफर करता था. उनके एसेज के एग्जाम्पल से ही मैं आई यूज टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एन एसे. अगर मेरे को वो नाम रिकॉल होगा तो मैं आपको बताऊंगा. और एल्स आई विल पोस्ट दिस द नेम ऑफ द टॉपर जिनके एसेज मैं रेफर करता हूँ. ये मैं रेफर करता हूँ. ये मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा इन माय स्टोरी. सो उस पे चलते हैं. ऐसे मैं वहां से रेफर करता. टॉपर्स की कॉपीज बिकेम द मेन सोर्स फॉर माय ऐसे राइटिंग. वहां से मैंने एग्जांपल्स उठाए. डायमेंशंस के साथ साथ यू हैव टू मस्ट कवर इज योर क्रिटिकल थिंकिंग. लाइक वॉट एवर द टॉपिक इज, वॉट एवर द हेडिंग इज, आपको उसके काउंटर थिंकिंग में भी आपको ध्यान रखना है. वो आपको मस्ट मेंशन करना है. लाइक फॉर एग्जांपल दिस ईयर द ऐसे वाज दैट लाइफ शुड बी लिव्ड एज अ जर्नी एंड नॉट एज अ डेस्टिनेशन. तो पहले आप जर्नी पे लिखिए कि जर्नी इज इंपॉर्टेंट. ओके, वी मस्ट एंजॉय द जर्नी, बट यू ऑल्सो कवर दैट डेस्टिनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमें गोल देती है. विकसित भारत हमें बनाना है, तो दैट इज अ डेस्टिनेशन. वी हैव टू थिंक अबाउट द डेस्टिनेशन ऑल्सो, दैट विल डिफाइन आवर जर्नी. ओके, इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए थी, तो हमें जो डेस्टिनेशन था वो हमारे दिमाग में था कि हमें आजादी चाहिए. उसने हमारी जर्नी को एक रास्ता दिया. ओके, एक राह दी. ओके, हमें समझा, हमें पता लगा कि व्हाट वी हैव टू डू फॉर इंडिपेंडेंस. ओके, सो फॉर एनी जर्नी टू बी सक्सेसफुल देयर हैज टू बी डेस्टिनेशन. तो काउंटर व्यू भी लेके चलिए. ओके, जिंदगी को जर्नी की तरह भी जीना है, ताकि आप एंड्स और मीन्स, एंड से बहुत ज्यादा अटैच ना रहे, रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच ना रहे, जर्नी को एंजॉय करें. ओके, सो दैट यू विल बी मेंटली हेल्दी, यू विल बी मोर प्रोडक्टिव. फिर आप थीम्स में आप जा सकते हैं. काउंटर व्यू, इसको पहले सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन सब में ब्रेक करिए, हिस्टोरिकल में वे में ब्रेक करिए, टेक्निकल में ब्रेक करिए, और उसके बाद आप जाइए एंड्स में, कि डेस्टिनेशन भी इंपॉर्टेंट होती है. ओके, सो इस तरह से आप कवर करिए. क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे. आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई did in all my essays. Okay, so this is all about that. चलिए अब आपके questions मैं देख लेता हूँ. This is about the
एंटायर प्रीलिम्स एंड मेंस का स्ट्रेटजी एज वेल एज द ऑल द पेपर्स. चलिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ. आई विल नॉट कॉल आउट योर नेम बट आई विल रीड योर कमेंट्स. देयर इज अ कमेंट, सर चैट जीपीटी से मेंस आंसर पीवाईक्यू कैन वी राइट? डेफिनेटली आप चैट जीपीटी का एग्जांपल लीजिए. चैट जीपीटी पे क्वेश्चन पुट करिए एंड इंस्ट्रक्ट इट दैट इंस्ट्रक्ट इट कि मुझे गिव मी मल्टीपल डायमेंशंस एंड सब्सटेंशिएट ऑल द पॉइंट्स विद रिलेवेंट डेटा एंड अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स. और बट डू नॉट जस्ट ट्रस्ट इट ब्लाइंडली, क्रॉस चेक करके आप उसको नोट्स में ऐड कर सकते हैं. एथिक्स में चैट जीपीटी विल बी सुपर यूजफुल, सुपर यूजफुल. एसे एंड चैट जीपीटी, वो डायमेंशंस जो आप नॉर्मली नहीं सोच सकते हैं वो आपको चैट जीपीटी सोच के देगा. ओके वो एग्जांपल्स लाइक मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रोजा पार्क एंड एल्बर्ट आइंस्टीन, नेल्सन मंडेला, मल्टीपल राइट ब्रदर्स, उनकी जर्नी को वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है विच यू कैन यूज डायरेक्टली इन योर एसे. तो एथिक्स और उसके लिए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. सर मेरे पास संस्कृति ऑल द सब्जेक्ट्स वाइज क्लासेस हैं जो 2 ईयर ओल्ड हैं, तो मैं उनके नोट्स बनाऊं या नहीं? संस्कृत, रादर देन राइटिंग, रादर देन मेकिंग नोट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आंसर्स जो उसके पीवाईक्यू उनको लिखिए. बिकॉज मैं नोट्स कम बनाता था, आंसर ज्यादा लिखता था. इन माय ज्योग्राफी, माय ऑप्शनल इज ज्योग्राफी, तो मैं क्या करता था, जो 10 साल की पीवाईक्यू है उनको उनको सॉल्व करता था, वही मेरे नोट्स बन जाते थे. सो इन द एंड आई यूज टू हैव इज जस्ट वन बुक. This is one book for GS1, this is one book for entire optional paper 1, क्योंकि उसके अंदर सारे PYQs हैं. अगर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होगा तो मैं वहीं जाकर ऐड कर लूंगा. बट आई विल सेग्रीगेट ऑल देम, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजियोग्राफी. देन इन ह्यूमन ज्योग्राफी में पर्सपेक्टिव्स, थ्योरीज, मॉडल्स एंड थ्योरीज, इन सब में मैं डिवाइड करूंगा क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स लिख लूंगा. सो नोट की जगह आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं. चलिए मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है. वेयर यू टुक मेंस टेस्ट सीरीज फॉर जीएस. विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज मैंने ली है. विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज मैंने ली है. आई सॉल्व अभ्यास ऑल्सो इन 2023 एंड 2024 एंड इट वाज वेरी यूजफुल फॉर मी. दैट इज द थिंग. Sir, I'm connected to a foundation course and online program, and I have covered all NCERT basics from those lectures and completed my advanced main syllabus. This is not a question. Ask your question also. सर अगर चैट जीपीटी सब यूज करेंगे तो मेंस आंसर हाउ विल आई मेक अ डिफरेंस? सब मेंस तक पहुंचते नहीं है ना. और कुछ लाख में सिर्फ 14,000 13,000 लोग ही पहुंचते हैं, वो भी पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. अच्छा, यू मीन संस्कृति आईएएस? नो, आई कैन नॉट कमेंट ऑन, आई कैन नॉट कमेंट ऑन एनी कोचिंग कि उनके नोट्स कैसे होंगे, आपने किस तरह से नोट्स बनाए होंगे, मैं उस तरह से बोल सकता हूँ. स्टार्ट राइटिंग, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप आंसर लिखना शुरू करिए, आंसर लिखना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए. प्रीलिम्स मेंस की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए नहीं. सर आप नोट्स कैसे बनाते थे? आई राइट एंटायर लेक्चर समटाइम्स वर्ड टू वर्ड व्हाइल वाचिंग लेक्चर. देखिए अभी आप लेक्चर देख रहे हैं, अभी आप इस स्टेज में हैं. अभी आप आराम से मस्त लेक्चर देखिए, पढ़िए, उस टॉपिक को कंप्लीट करिए. जब नोट्स बनेंगे ना, वो आपकी सेकंड, जब आप उन जो आपने क्लासेस लिए उनसे बनेंगे रिफाइंड नोट्स जो आपके खुद के होंगे. और ये नोट्स किससे डायरेक्ट होंगे? फर्स्ट इज सिलेबस, सेकंड इज पीवाईक्यू. सिलेबस एंड पीवाईक्यू के बेसिस पे जो नोट्स बनेंगे वो मोस्ट प्रिसाइज नोट्स होंगे, उसमें मिस्टेक के चांसेस कम होंगे एंड दैट विल बी द राइट डायरेक्शन. सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन. यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. सर बिगिनर्स को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? एनसीईआरटी बिगिनर्स को पहले, सबसे पहले तो काम रहना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी है. Do not keep the 11 months factor in mind. Do not keep the 11th month factor in mind. 15 से 16 महीने का विंडो लेके चलिए. ओके अगर आपको एक बार पूरा सिलेबस एक बार देखना है तो एक बार सारे सब्जेक्ट्स को गो थ्रू करिए. देन रीड 365 डिग्री, 365 डिग्री होने के बाद, 365 डिग्री एंगल कवर होने के बाद यू कैन revise the subjects all again. Okay, go for any topic. How much depth we should go for any topic?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक द वेरी बेसिक एग्जांपल जो आप समझ भी पाएंगे। पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं जैसे प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपीज हैं। इनको आपको वर्ड बाय वर्ड, हार्ट बाय हार्ट पढ़ना है। अब देर आर सर्टेन चैप्टर्स जो कि चैप्टर के एंड में है, जैसे उसमें इलेक्शंस हैं या फिर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं विच आर मेंस रिलेटेड टॉपिक्स, तो उनको प्रीलिम्स के लिए इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एम लक्ष्मीकांत से आपका मेंस तो प्रिपेयर होगा नहीं, उसके लिए तो आपको कुछ और, क्योंकि गवर्नेंस भी आएगा उसके अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस भी आएंगे, बहुत सारे जुडिशरी भी आएगा, तो वो उसको आपको वहां से कवर करना है। सो इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड्स। जैसे आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे बुद्धिज्म जैनिज्म डीप में पढ़ना है, मुझे गुप्तास को डीप में पढ़ना है, मुझे आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ओके, सो आपको समझ में आता जाएगा कि यूपीएससी का फोकस कहाँ है, व्हाट ऑल टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको डेप्थ में जाना है। बाकी सबको आप यू कैन फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स। अगर आप टॉपिक को 2 बार पढ़ रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको 5 बार पढ़िए, मल्टी और डीप में जाके पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई नो आई मेड द नोट्स ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म, वो बहुत डिटेल में बनाए थे, बिकॉज उनके क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा रैंडम होते हैं। तो जो चेड़ा सूत्रास हैं, मूला सूत्रास हैं, उपंगास हैं, तो इन सब के नोट्स मैंने बनाए थे, क्योंकि क्वेश्चंस आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बिलोंग टू जैन रिलीजन और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कमिंग फ्रॉम द बुद्धिस्ट रिलीजन। तो आप वो उनको मार्क करने के लिए, सो वो डिटेल में जाने वाला बात है। तो कितना डीप में आपको जाना है किसी टॉपिक पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड्स डिसाइड करेंगे। ओके, चलिए। राइटिंग यूज किया सर, न्यूज़पेपर, हाँ जी बिल्कुल यूज किया। न्यूज़पेपर में आंसर राइटिंग को यूज कैसे करते हैं, कैसे किया। इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन होता है उसमें, उसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, द हिंदू के अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं, और संडे को साइंस एंड टेक, साइंस के आर्टिकल्स आते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली आई यूज्ड न्यूज़पेपर फॉर एथिक्स, पॉइंट नंबर 1, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉइंट नंबर 2, अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम बहुत ज्यादा चल रही है तो पॉइंट नंबर 3। इससे ज्यादा बियॉन्ड नहीं जाना है, बिकॉज फिर उसके बाद आपके नोट्स बहुत ज्यादा, और वो भी आपको जो आपने आंसर्स लिख लिए हैं ऑलरेडी, उसमें वैल्यू एडिशन के लिए यूज करना है। डू नॉट स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर, वो तो 365 डेज आएगा, आप कब तक नोट्स बनाएंगे। और अगर आपकी जर्नी 3 साल की या 2 साल की है मिनिमम, वैसे आप 1 साल तैयारी करते हैं, 1 साल आप पेपर देते हैं, तो 2 साल का हो गया। 2 साल की न्यूज़पेपर की नोट्स आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है ना दोस्तों, वो न्यूज रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान इजराइल इज गोइंग टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, अगर 106 अमेंडमेंट एक्ट आया है तो इट इज गोइंग टू स्टे इन द न्यूज फॉर अ वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। सो डू नॉट चेज माइन्यूट न्यूज जो कि एक बार आके चले गई, तो यार मेरा 2 दिन का न्यूज़पेपर मिस हो गया है, सो आई शुड कवर दोज न्यूज़पेपर्स अगेन, ऐसा नहीं करना है। इंपॉर्टेंट न्यूज विल बी रिपीटेड इन द editorial section as well as in the the news section. सर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया, हमें कौन सा लेना चाहिए? इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, बिकॉज ऑप्शनल इज समथिंग विच वेयर जहां आपको बहुत ज्यादा समय स्पेंड करना होगा, बहुत टाइम स्पेंड करना होगा, तो आप वो लीजिए जहां आपका इंटरेस्ट रहे। अगर आपकी ग्रेजुएशन जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है और वहीं से आप सवाल, वहीं से आप ऑप्शनल चूज करते हैं, तो दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपकी कुछ फाउंडेशन पहले से रखी हुई है तो वो आपको समझ में आ जाएगी। तो दैट इज द समथिंग विच यू चूज। अगर आपका कोई लेने का मन नहीं है, सो टेक सम फाउंडेशन क्लासेस फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। गो थ्रू द सिलेबस ऑफ दैट ऑप्शनल, आपको वो टॉपिक्स फेमिलियर लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, देन गो फॉर दैट ऑप्शनल, चूज योर ऑप्शनल वेरी वाइसली। जय सर, मेरे पास 2 ईयर ओल्ड लेक्चर हैं तो सिलेबस चेंज तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, और चेंज भी होगा तो इट विल चेंज द पैटर्न, नॉट द सिलेबस। हिस्ट्री तो हिस्ट्री रहेगी, इकोनॉमी इकोनॉमी रहेगी, कोर कंसेप्ट तो वही रहेंगे ना, पॉलिटी तो पॉलिटी ही रहेगी, राइट। अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, वो आप वैल्यू एडिशन के लिए ऐड कर सकते हैं, बट डू नॉट वरी। मेरे नोट्स तो, मैं तो 2025 में पास हुआ, तो मेरे तो कुछ नोट्स 2021 के बने हुए हैं, सो वो मैं आज भी यूज कर रहा हूँ। सो इट डजंट मीन कि नोट्स खराब हो गए। आपको बस ये चेक करना है कि ये कितना करंट टॉपिक है। अगर जैसे मान के चलिए आपके नोट्स एनवायरमेंट के हैं और उस पर कुछ नेशनल पार्क है या फिर रामसर साइट्स हैं,
तो आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे, उसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। कोई जानवर की कोई एनिमल है, उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एंडेंजर्ड आ गया है, या कोई रामसर साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐड हो गई है, या उससे हट गई है, तो इसको आपको अपग्रेड करना होगा, अपडेट करना होगा। जैसे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, तो 15th का फाइनेंस कमीशन है, 16 फाइनेंस कमीशन, वो आपको वैल्यू एडिशन करना होगा। बट दैट डजंट मीन कि आपके पुराने नोट्स खराब हो गए, दे आर वेरी मच वैल्यूएबल। सर कैसे पता चलेगा कि अब पूरी तरह से रेडी हो अटेम्प्ट के लिए? कभी पता नहीं चलेगा जीवन में कि आप अटेम्प्ट के लिए रेडी हैं। आपको बस ये देखना है कि आई हैव कवर्ड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सिलेबस, मैंने वो सब कर लिया है। टिल टुडे ऑल इंडिया रैंक 1 जब प्रीलिम्स के लिए एंटर करते हैं, तब भी उनको ये नहीं 100% कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं 200% क्लियर करके निकलूंगा। ओके, एवरीवन गोज थ्रू दैट नर्वसनेस, सबको डर लगता है, गला सबका सूखता है माउंटेन ड्यू जैसे, सबको टेंशन रहती है। आपको बस कामनेस रखनी है। यू जस्ट हैव टू बिलीव योरसेल्फ दैट आई हैव कवर्ड माय कोर सेक्शन प्रॉपरली, और मैंने सारे पीवाईक्यूज लिख लिए हैं और उनको रिवाइज कर लिया है मल्टीपल टाइम्स। नाउ गो फियरलेसली, बिना डरे जाइए। अगर इसके बियॉन्ड सवाल आता है तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, आई हैव कवर्ड ऑल द बेसिक बुक्स, सारे कोर सेक्शंस मैंने कवर कर लिए हैं, करंट अफेयर में पढ़ के आया हूं। इसके बाद अगर कोई सवाल पेपर में आया है, तो अगर ये मुझे नहीं आता तो कंट्री में किसी को भी नहीं आता। ओके, गो विद दिस कॉन्फिडेंस, तो आप एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, वो सी सेट के लिए, तो आप मुझे रिमाइंड करिएगा कि मुझे सी सेट के लिए आपको कुछ बताना है। सर आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी एंड हाउ मच टाइम टुक टू प्रिपेयरिज्म? 6 साल 8 महीने 14 दिन, टू बी प्रिसाइज 6 साल 8 महीने 14 दिन मुझे लगे इस पूरी जर्नी में। इसके बीच में मैं आई appeared in the interview in 2023 also. सर किसका फाउंडेशन अच्छा है? बहुत सारे कोचिंग से जिनका फाउंडेशन ले सकते हैं। I'm not going to be precise, मैं किसी एक कोचिंग का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ मैंने किससे करी थी, मैंने राउज आईएएस से करी थी भाई। हाँ, राउज आईएएस से करी थी। सर मैथमेटिक्स ऑप्शनल लें या नहीं? मैथमेटिक्स ऑप्शनल डिपेंड करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट है। अगेन मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट, गो थ्रू सम क्लासेस ऑफ सम गुड कोचिंग, या फिर आप सिलेबस को और उसके मटेरियल को गो थ्रू करिए, फिर आप देख सकते। सर ऑप्शनल के लिए कॉलेज से अगर हम चूज करें तो क्या सही रहेगा? कॉलेज के डाटा क्या इनफ रहेगा? इट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शनल टू ऑप्शनल, है ना, कि कौन से ऑप्शनल में कितना डेटा ग्रेजुएशन से आता है, कितना कंटेंट ग्रेजुएशन से आता है। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन लाइक ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पीएसआईआर है, सोशियोलॉजी है, तो यहाँ पे बहुत सारा सिलेबस ओवरलैप करता है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है थिंकर्स के बारे में लिखने के अंदर, या फिर बाकी चीजों के बारे में। सर पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए? मेंस के लिए आई प्रेफर्ड शून्य आईएएस, वन स्टॉप सॉल्यूशन। Trust me, it worked in 2023 also, it worked in 2025 also. In 2023, I scored 412 marks in my GS, and in 2025, I scored 417 marks in my GS, and I'm going to post my mark sheet on the social media platform Instagram, तो आप वहां से देख सकते हैं। The PYQ which I referred was शून्य आईएएस, आप एक बार चेक कर सकते हैं। 8 years solved PYQ, and प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू आई रेफर्ड घटना चक्र। घटना चक्र में दैट इज अ वेरी गुड बुक फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। सर ऑप्शनल सोशियोलॉजी का कोई अच्छा सोर्स? आई एम वेरी सॉरी, सोशियोलॉजी का मुझे सोर्स मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। दैट्स नॉट माय सर, सिंसियरली वांट फ्यू एडवाइसेस, प्लीज टेक अप माय क्वेश्चन। हाँ तो आप पूछिए, सवाल पूछिए, प्लीज पूछिए। मैं इस आईडी से जो भी सवाल आएगा मैं पक्का उससे कवर करूंगा। प्लीज पूछिए। उससे पहले सर नोट्स पुराने हो तो उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे? नोट्स लीव सम स्पेस। जैसे मैं क्या करता था, जो यूपीएससी की आंसर राइटिंग वाली कॉपी आती है, उसमें साइड में स्पेस खाली रहता है। तो मैं पहली बात तो मैंने आपको बताया कि मैंने नोट्स नहीं बनाया, मैंने सीधे आंसर लिखे हैं। वो मेरे जो आंसर्स मैंने लिखे हैं पीवाईक्यू प्लस जो मैंने टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस वहां पे ऐड किए हैं, वही मेरे नोट्स बन गए हैं। ओके, वहां पे बस मैं वैल्यू एडिशन कर लेता हूं। अब इससे क्या होता है दोस्तों, जब मैं एक्चुअल मेंस दे रहा होता हूं तो मैं ब्रेन डजंट फंक्शन लाइक पहले नोट्स से मुझे इंट्रोडक्शन बनाना है, पहले नोट्स से बॉडी बनानी है। अब मेरे पास उस थीम के 2 से 3 आंसर्स पहले से लिखे हुए हैं, तो आई नो इंट्रोडक्शन, आई नो बॉडी, आई नो कंक्लूजन। ओके, सो लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। हाँ प्लीज पूछिए सवाल आप। सर एनसीईआरटी को खत्म किस तरह से करें?
खत्म नहीं करना है, कंप्लीट करना है, खत्म नहीं करना है। एनसीईआरटीज़ को कैसे कंप्लीट करना है? इट्स वेरी ईज़ी, ईज़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कौन सी एनसीईआरटीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा ईज़िली स्टार्ट करने के लिए? फर्स्ट स्टार्ट विद ज्योग्राफी, 6 टू 12th आप स्टार्ट करिए, ईज़ी बुक्स हैं। आप एक दिन में 6th 7th की किताब खत्म कर सकते हैं एंड लाइक इन लाइक 1 वीक यू कैन कवर द ऑल द बुक्स सिंसियरली अगर आप आराम से उसको कवर करते हैं तो। देन आप यू कैन गो टू PYQs एंड सॉल्व दोज़ एनसीईआरटीज़। हिस्ट्री एंड इकोनॉमी के लिए आप एक बार पढ़ लीजिए बट दैट इज नॉट इनफ। पीएसआई पॉलिटी के लिए भी वो इनफ नहीं है, बट ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इनफ है। हिस्ट्री के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज इनफ। प्लीज समथिंग फॉर हाउ टू स्टे काम एंड एनर्जेटिक ड्यूरिंग सी सेट एग्जाम। वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इसको एड्रेस करूंगा पक्का। सर एट ऑल सर माय मुस्कान sir, my geography is not good at all. Can you please suggest how can I improve as your optional was geography? Uh, so first of all, geography is a very interesting subject. आप एनसीईआरटी से पढ़िए, आपको बहुत सिंपल मजा आएगा। दूसरी बात, मैपिंग के बिना आप ज्योग्राफी मत पढ़िए। आप आई डिड माय मैपिंग फ्रॉम सुदर्शन गुजर सर, जो अन अकेडमी से पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने नोट्स अपडेट किए करंट अफेयर्स के हिसाब से, जो भी वॉर चल रहा है वेस्ट एशिया के अंदर उसको मैं अपडेट करता गया, बट आई डिड माय मैपिंग फ्रॉम देयर। वर्ल्ड मैपिंग करी थी, इंडिया मैपिंग वहां से नहीं करी थी। सुदर्शन गुजर सर से वर्ल्ड मैपिंग मैंने करी है, वो उन्होंने अच्छा पढ़ाया था। इंडिया मैपिंग मेरा ऑप्शनल था, सो मुझे इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सॉइल, इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट वगैरह जो है वो सब मैंने वहां से खुद से मार्क किया और कवर किया। उसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी। कई बार हम मिस्टेक क्या करते हैं, हमें मैपिंग तो पता नहीं होता और हम कंसेप्ट पढ़ने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, अब ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वो लोकेशन मार्क कर रहा है, लैटिट्यूड मार्क कर रहा है, पर आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे कि ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट वो लिख रहा है वेस्ट यूरोप, उसमें कंट्रीज के नाम लिख रहा है, पर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ 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 मिलता है, तो आपको मैपिंग नहीं पता है आपको, तो आप ज्योग्राफी नहीं समझ पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू मैपिंग वेरी प्रॉपरली। फिर आप जब साइक्लोन पढ़ेंगे या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। Sir, I have 2 years left for my exam. Should I start mains practice right now or after completing my syllabus? जो जो syllabus complete हो रहा है उसके सवाल लिखना शुरू करिए। Do not wait for the ideal day, वो कभी नहीं आएगा दोस्तों। ओके, आइडियल डे कभी नहीं आता। आप 10 साल प्रिपरेशन करेंगे यूपीएससी की, तब भी आइडियल डे नहीं आएगा। स्टार्ट राइटिंग, बुरा लिखिए, अच्छा लिखिए, लिखिए, ब्रेक द इनर्शिया, राइट, स्टार्ट राइटिंग। सर मुझे 10th हिस्ट्री का एक चैप्टर करने में 1 दिन लग जाता है और रिवीजन के बारे में बताएं प्लीज। कोई बात नहीं, यू टेक योर टाइम, एवरीवन इज टेकिंग देयर टाइम। आई टुक 6 years, यू टेक योर टाइम, पर समझिए उसको। जब आप सेकंड टाइम आएंगे तब आपको 1 दिन नहीं लगेगा, तब आपको कपल ऑफ आवर्स लगेंगे। फिर जब आप थर्ड टाइम आएंगे इट विल कम ऑन योर टिप्स, सो आपका टाइम वहां पे बच जाएगा। सो इट्स अ फेज, इट्स अ फाउंडेशन फेज। हिस्ट्री इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर द पर्सन हु इज स्टडिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए हिस्ट्री इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू कवर, क्योंकि उसके अंदर क्रोनोलॉजी होती है, फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं विच यू कैन नॉट रिमेंबर इन द फर्स्ट इंस्टेंस। So you have to revise it multiple times to get your foundation very strong in history especially. So आप पढ़िए अभी आराम से, give it some time, okay, give it time, it will come. ऑनलाइन क्लासेस लाती हूँ मैं करंट अफेयर्स, बिल्कुल लीजिए, नो प्रॉब्लम फॉर द करंट अफेयर्स। बट करंट अफेयर्स के आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आप लीजिए, देयर इज नो हार्म इन दैट। बट प्रीलिम्स के अंदर आप पहले प्रायोरिटी कोर को देंगे, उसके बाद करंट को देंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके सर, टॉपर्स कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, वो ऐसा डिफरेंट क्या कर रहे हैं? मैं ऐसा देखते हैं जैसे बहुत इजी था, 15 दिन में मैं एक सब्जेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम आई एम एक एवरेज एस्पिरेंट हूँ। अगर आप एक एवरेज एस्पिरेंट हैं तो यू आर गोइंग टू टेक 15 to 16 months टू कवर द एंटायर सिलेबस वन टाइम। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं उसके दो तरीके हैं। या तो वो कॉलेज से ही टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे हैव डन देयर फाउंडेशन क्वाइट वेल, और वो आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। दूसरा, किसी ने बहुत समय तक अटेम्प्ट नहीं दिया, मतलब 1 से 2 साल तक कोई अटेम्प्ट नहीं दिया, एंड दे स्पेंड देयर एंटायर टाइम इन प्रिपेयरिंग, और जब वो आते हैं अटेम्प्ट देने तो वो बोल देते हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, पर वो ये नहीं बताएंगे कि इसकी तैयारी पिछले 3 साल से चल रही है। पर वो बताएंगे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। एंड अगर कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट है, जैसे कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में 11 महीने में आ गया है, तो उसको आप आइडियल मत बनाइए, बिकॉज
इफ वी ऑल आर एवरेज एंड अबव एवरेज स्टूडेंट्स, जिस जो पढ़ाई में एवरेज हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, बट वी आर नॉट एक्सेप्शनल माइंड्स, तो उनके लिए इट टेक्स टाइम, तो यू वी हैव पेशेंस। ओके, जैसे सर मुझे 2029 में 2029 में फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो हाउ टू मैनेज करंट अफेयर्स एंड लर्न अ लॉन्ग टाइम। देखिए, अगर आपको 2029 में अटेम्प्ट देना है ना, तो आप 2027 से करंट अफेयर्स अभी आप प्रैक्टिस तो रखिए, बिकॉज न्यूज़पेपर रीडिंग आप रखेंगे, एंड यू विल आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हैं किसी यूट्यूब चैनल से, तो आप आराम से बैठकर और उस न्यूज़पेपर एनालिसिस को देखिए, बट डू नॉट मेक नोट्स राइट नाउ, जस्ट कीप समथिंग इन माइंड कि ईरान का इजराइल का वॉर चल रहा है और यू हैव सम इंफॉर्मेशन विद यू। बट जब 2027 आ जाए तो स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, नॉट ऑल द करंट अफेयर्स, क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर तो आपको यूपीएससी में यू मस्ट हैव द आइडिया ऑफ 2 years करंट अफेयर्स। यू आर यूनिक वन, थैंक यू सो मच। जय सर, मुझे 2029 आई फॉरगॉट अ लॉट हाउ टू डील विद दिस। भैया सब कुछ पढ़ाओ पढ़ो और फिर भी लगता है कि कुछ पढ़ा नहीं, और ऐसे लगता है जो मैं पढ़ूंगा उससे कुछ आएगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दिस इज वेरी कॉमन थिंग विद ऑल द एस्पिरेंट्स। यू बिलीव ना, जब किताब ही सब वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, जो पास कर रहा है वो भी वही पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हैं, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर आपको नहीं आएगा तो उसको भी नहीं आएगा। ओके, अगर पार्लियामेंट से या फिर पॉलिटी से या लक्ष्मीकांत से या बुद्धिज्म जैनिज्म से या फिर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन से टॉपिक आना ही आना है, ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो पेपर में आएगा ही आएगा। मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। से सर ये बताइए कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में, हाउ टू डील विद दिस। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस कम्स इन एथिक्स में बहुत ज्यादा डील करना होता है, सो यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, एंड इन मेंस when it is said that give your opinion and what's your what do you think, so उसमें आपको you have to give some concrete evidences, facts and figures के साथ सपोर्ट करना है। you can take a stand, बट उसको आपको सपोर्ट करना है, सब्सटेंशिएट करना है। भारत एक गरीब देश है, व्हाट्स योर ओपिनियन। भारत एक अमीर देश है, गिव योर ओपिनियन। अब आप बोल देंगे भारत एक गरीब देश है, तो उससे कोई नहीं मानने वाला। बट अगर आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सो एंड सो इज द रैंक ऑफ इंडिया, एंड इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम, दैट शोज दैट यू हैव अ ओपिनियन एंड यू आर बैकिंग इट विद अ कॉन्क्रीट डेटा एंड एविडेंस, तो वो सही है। बट यू कैन नॉट गिव योर ओपिनियन अकॉर्डिंग टू, एंड उसके पास आपके पास कोई बैक करने के लिए आपके पास एविडेंस नहीं है। सर, एनी सजेशंस फॉर मेंस नोट्स इफ यू रेफर्ड एनी? आई टोल्ड यू कि मेरा जो नोट्स है वो मेरे PYQ सॉल्व है और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करता हूँ। अब मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ, लाइक मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं पहले नोट्स बना रहा हूँ फिर उनसे। माई आंसर्स आर माई नोट्स। मेरे पास एक किताब होती है पूरे GS1 की, उसमें पिछले 10 साल के सारे सवाल हैं, भले ही वो थीम रिपीट हुई है, आई एम गोइंग टू राइट दोज आंसर्स अगेन। सारे आंसर्स लिखने के बाद मैं उनके थीम्स को कंपाइल करता हूं एक साथ, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल है, जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म है, जैसे गुप्ताज हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर वाले क्वेश्चन है, पेंटिंग्स पे क्वेश्चन है, उनको मैं कंपाइल करूंगा और उनको साथ में रखूंगा, और वो बन गई पूरी एक सेक्शन। फिर इंडियन सोसाइटी के सारे आंसर्स एक जगह, ज्योग्राफी के आंसर्स एक जगह, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के आंसर्स एक जगह, मैं उनको सेग्रीगेट कर लूंगा, एंड आई विल मेक अ वन एंटायर कॉपी ऑफ GS1 जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और दैट विल बिकम माय नोट्स। और अगर कुछ नया आ रहा है तो मैं उसी में ऐड करूंगा। कीप इट वेरी सिंपल फ्रेंड्स, गेम को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए कि पहले नोट्स भी बना लेते हैं फिर मैं आंसर्स लिख रहा हूं, ऐसा मत करिए। कीप इट वेरी सिंपल, कीप द सोर्सेज लिमिटेड, आपके नोट्स को बहुत सिंपल रखिए। सर आपने 10 साल की PYQ ही आंसर लिखा है? बिल्कुल, मैंने 10 साल तक ही रिस्ट्रिक्ट किया है। आप 10 साल तो लिखिए, 10 साल बहुत होते हैं, ठीक है? आप पहले 5 साल की लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा, राइट? 10 years का लिखिए। सर प्रीलिम्स के लिए फ्री टेस्ट सीरीज काफी है या पेड लेना पड़ेगा? देखो दोस्तों, मुझे पता नहीं है आप फ्री लेना चाहते हैं पेड लेना चाहते हैं, बट जो जो जैसे फॉर एग्जांपल आपको रियल टाइम सिमुलेशन तो चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप 2 घंटे में OMR भर रहे हैं और 2 घंटे बाद आपसे OMR कोई छीन के ले जा रहा है। अगर आप ये प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं, वेल एंड गुड। मैं ये नहीं कर सकता था। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक्चुअल प्रीलिम्स में अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिया है, एक्चुअल प्रीलिम्स में पेपर 1 के बाद CSAT होता है,
और मई जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, तो इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। गर्मी पड़ रही होती है एंड पेपर वन के बाद हम एग्जॉस्ट हो गए हैं, नाउ आपको सीसैट सॉल्व करना है। तो मैं कोशिश करता था इवन टिल माय फिफ्थ अटेम्प्ट कि मैं एक एग्जामिनेशन सेंटर में जाऊं, वहां पे पेपर दूं, वो मुझसे पेपर छीने, एग्जैक्टली 3 घंटे के बाद मैं सीसैट भी देने आऊं 2:30 पे, और 4:30 तक मैं वहां से कोई मेरे से ओएमआर छीन के चला जाए। ओके, do this simulation because knowledge at times need calmness of mind and practice, कि आपने एक्चुअल ग्राउंड में वॉर टाइप कंडीशंस में प्रैक्टिस किया है कि नहीं, आपने अभ्यास किया है कि नहीं, आपने प्रैक्टिस रियल एग्जामिनेशन फील किया है कि नहीं। सो डू इट मल्टीपल टाइम्स। जब आप एक्चुअल प्रीलिम्स देने जाएंगे तो आपको इतना प्रेशर प्रेशर फील नहीं होगा। सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर आई मिस माय क्लास जस्ट बिकॉज टू गेट फ्यू एडवाइस। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज पूछिए, आप पूछिए, आप पूछिए। मेल ओरिएंटेड क्वेश्चन सर, इन एज एंड फैमिली प्रेशर से कैसे डील करें? मेल ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं समझा नहीं। फैमिली प्रेशर से कैसे डील करें, एज से फैमिली प्रेशर से कैसे डील करें? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखिए, अगर आपको पहले से 3 अटेम्प्ट देने हैं, अगर आप 3 अटेम्प्ट तक आपका कोई भी आई माइट बी अ लिटिल बिट हार्श ओवर हियर, अगर 3 अटेम्प्ट तक आपका एक बार भी प्रीलिम्स नहीं निकला है तो रीविजिट योर डिसीजन एंड थिंक अबाउट अदर प्लान बी ऑल्सो। आप प्लान बी भी साथ में लेके चलिए। फॉर एग्जाम्पल इन माई मैं थर्ड अटेम्प्ट तक, इन माई थर्ड अटेम्प्ट आई रीच्ड अप टू द इंटरव्यू स्टेज, बट आई वाज नॉट एबल टू सी माय नेम इन द फाइनल पीडीएफ, so I started teaching. So as a plan B, it's my interest also. I started teaching also. It kept me mentally healthy, economically, individual में उसके अंदर I was able to manage my finances. मेरे खुद के खर्चे निकल जा रहे थे. So I was able to support my own preparation also. So this is something I can tell you to support overcome family pressure and mental pressure also. सो अगर आप कोई भी, आपके पास आईटी, आपका कॉलेज का कोई जॉब है जो आप करना चाहते हैं, तो 3 अटेम्प्ट अगर आपके हो गए हैं और आपका पास पॉजिटिव कुछ होप नहीं दिख रहा है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्लान बी माय फ्रेंड्स, सर आंसर राइटिंग के टाइम आई मिस माई क्लास जस्ट बिकॉज टू गेट फ्यू एडवाइस। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आपके सवाल पूछिए आप प्लीज। शार्दुल पाठक, मैं आपका सवाल का आंसर दे रहा हूँ। शार्दुल, मैंने आपका सवाल का आंसर दे दिया है। I took coaching 6 months gone. I wasted. Should I take those recording classes again with live classes running, please? हाँ, आप रिकॉर्डेड है तो क्या दिक्कत है, आप देखिए तो सही एंड हैव पेशेंस। 6 महीने चले गए तो क्या हो गया? ड्यूरिंग कोविड मैं 3 से 4 5 महीने तक क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था। कोविड के टाइम पे कोचिंग के ब्रेक आ गए थे, सो आई वाज नॉट एबल टू गेट द कोचिंग एक्सेस, बट आई केप्ट गोइंग। आपको खुद से पढ़ना, छठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी तो आपके पास अवेलेबल है ना, उनको रीड करना शुरू कर दीजिए। टाइम नहीं समझ आता हाउ टू एंड व्हाट टू राइट, बट व्हेन आई सी अ मॉडल आंसर फॉर इट तो लगता है ये तो मुझे पता था। दैट इसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा दोस्त। आप बोल रहे हैं ना कि जब मैं खुद लिखने बैठता हूं तो मैं लिख नहीं पाता, पर मॉडल आंसर देखता हूं तो ये तो मुझे पता था। तो फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी। मैंने एक 8 की 8 साल की सॉल्व पीवाईक्यू की किताब उठाई, उसमें 5-5 सवाल मैंने पिक किए, उनको मैं याद करता था, फिर उस किताब को बंद करके लिखता था। मेरा धीरे धीरे एप्टीट्यूड बनना स्टार्ट हो गया कि अच्छा ऐसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इस तरह से हेडिंग बनानी है, इस तरह से पॉइंट्स लिखना है, इस तरह से एग्जांपल्स लिखने हैं। इससे क्या हुआ दोस्तों, एक तीर से दो निशाने लगे, मेरे पीवाईक्यू खत्म हो गए, मेरा आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग बन गया कि मुझे डिमांड को किस तरह से एड्रेस करना है, ये सब चीजें मेरे दिमाग में आ गई। क्या फाउंडेशन इनफ है फॉर प्री एंड मेंस? यस, इट्स इनफ। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट एंड टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिए, आज ही करिए, आज से 2 सवाल रोज करिए। ओवर एम्बिशियस गोल मत बनाइए कि मुझे तो 10 आंसर रोज के लिखने हैं, वो महाराणा प्रताप टाइप आप बिल्कुल तैयार हो गए जंग के लिए, वो नहीं करना है। 2 सवाल लगाइए, रोज लगाइए, महीने में 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आज मैं आपको बताऊं 60 क्वेश्चंस आपने पिछले 6 महीने में नहीं लिखे होंगे, when you can write 60 questions in 1 month. Okay. Sir, I am connected to foundation course of only IAS and completed 60 to 70% syllabus, but did not read any book. Please, why? What could be my strategy ahead?
मैं समझ रहा हूँ कि आपका कनेक्टेड टू फाउंडेशन कोर्स 60-70% सिलेबस हो गया है, बट आपने कोई किताब नहीं पढ़ी। कौन सी किताब नहीं पढ़ी आपने? एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी है आपने, रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ी है, या मेन किताबें नहीं पढ़ी है आपने? कौन सी किताब नहीं पढ़ी है आपने? बट क्योंकि टाइम कम पड़ रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो फोमो क्रिएट होता है। हाउ टू डील विद दिस? यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बिलीव योर प्रिपरेशन दैट यू कैन डू इट। ओके, आपके अंदर से आवाज आ जाएगी दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर वो है तो यू कैन गिव वन मोर ईयर टू योर प्रिपरेशन। उसके बाद आपको प्लान बी के लिए तो जाना ही पड़ेगा दोस्त, अगर आपके अटेम्प्ट्स 3 से ज्यादा हो गए हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इसका आंसर करना, इनको बोलना कि थोड़े टाइम में आ रहे हैं, डिनर के लिए बुला रहे हो। सर मेरा कमेंट तो पढ़िए, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ। सर हाउ Sir, how to mold current affairs in answers? I read newspaper daily, but when I need some pointers to inculcate in my answer, I'm left completely blank. देखिए मैंने आपको बताया ना एग्जांपल्स और करंट अफेयर्स में क्या करना है। एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आप एग्जांपल अखबार से इस्तेमाल करिए। और चौथा अखबार आपके काम आएगा एथिक्स। एथिक्स कंप्लीट करने में आपको काम आएगा। नोट्स आउट ऑन यूज टू बल्कि, टू डोंट मेक इट बल्कि। ओके, जस्ट यूज दिस फॉर, मैंने आपको 4 पिलर बताए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। इसमें अगर आपको कुछ आता है, अखबार में ऐसे मिलता है, तो आप अपने PYQ सॉल्व जो आपने किए उसमें आप ऐड करना है। कोचिंग के नोट से तो उसमें ऐड करना है, बाकी ज्यादा परेशान नहीं होना है। ओके सर, देयर इज टू मच मटेरियल इन द मार्केट, it creates FOMO, unable to stick one source, I'm unable to channelize my preparation. देखो दोस्तों, with more internet, more chat GPT, more sources, आपके नोट्स तो बल्कि होने ही वाले हैं। दैट इज वेरी नेचुरल। यू नो, जब लाइब्रेरीज में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो देयर इज अ फोमो कि मेरे बगल वाला ज्यादा पढ़ रहा है, अपडेटेड मटेरियल पढ़ रहा है। यू हैव टू बिलीव कि मैंने 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, आई नो द नेम ऑफ द बुक्स जहां से पेपर आता है, टॉपर्स भी यही पढ़ रहे हैं, तो मुझे कुछ और पढ़ने की क्या जरूरत है? आप कौन सा मतलब 2075 में से 2075 मार्क्स तो आपको लाने नहीं है। 50%, 50-55% मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता है। तो यू जस्ट हैव टू बी ऑन द राइट ट्रैक, बिलीव कि जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ। ओके, पेपर यहीं से आएगा। कीप टेलिंग योरसेल्फ पेपर यहीं से आएगा, और पेपर आएगा भी वहीं से, क्योंकि आपने सिलेबस देख लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, उसके बाद आपने स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो कर लिए। सब दोस्त यही कर रहे हैं, तो आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। लिखते हैं प्लीज टेल सर, चैट जीपीटी से मेंस आंसर कैसे लिखते हैं, प्लीज टेल मी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, चैट जीपीटी पे डालिए, उसको इंस्ट्रक्शंस दीजिए। वन इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज गिव मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स एंड सब्सटेंशिएट ऑल द पॉइंट्स विद क्रेडिबल डेटा एंड एग्जांपल्स। मैजिकल आंसर्स विल बी गिवन इन हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, जहां पे अमेजिंग आपको डायमेंशन मिल जाएगी विच यू नॉर्मली यू कैन नॉट थिंक। slowly you will train a chat gpt for your way of writing answers. essay के अंदर भी chat gpt is going to very helpful, it is will be very helpful to get critical thinking also, and to get multiple dimensions and examples, unique examples. आंसर राइटिंग, बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वेरी कंसिस्टेंट, 2 to 3 आंसर्स आप लिखिए, फिर बिल्कुल लिखिए। इसका ये इट्स अ स्लो स्लो बट वेरी स्वीट विक्ट्री। जो आप डेली 2 आंसर लिखेंगे ना, आप देखेंगे आफ्टर 2 to 3 months इफ यू आर फॉलोइंग दिस, आप देखेंगे कि यार आज तो मेरा आंसर बहुत बेकार लिखा है, आज मेरा आंसर अच्छा लिखा है। आफ्टर 2 to 3 months if you do this, you will see the magic that now you can go to a examination center and you can write 20 questions in 3 hours or 4 hours, doesn't matter, but you will be able to write. आपका पेन चलेगा, आपका पेन रुकेगा नहीं। हाँ, अपने तैयारी में कितने हेल्प कर सकते हैं चैट जीपीटी से? आई टोल्ड आई मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स, यू कैन वॉच द वीडियो, आप पीछे जाके देख सकते हैं। सर आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन सीसैट स्पेशली मैथ्स, कुड यू प्लीज गाइड मी ऑन हाउ टू प्रिपेयर इट? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन दीपिका। मैं को ये एड्रेस भी करना था। देखो दोस्तों, माय सीसैट वाज आल्सो नॉट वेरी मच ब्रिलियंट, दो आई एम एन इंजीनियर, तो मुझे बेसिक पता था। सो लेट्स प्रैक्टिकल, अब मैथ्स इसमें लगाते हैं, मैथ्स इन 80 सवालों में मैथ्स लगाते हैं। देखो दोस्तों, इन 80 सवालों में 27, 28, 29, मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे ही आएंगे।
बहुत ध्यान से सुनिएगा वो बच्चे जो मैथ्स में अच्छे नहीं है, जिनका सी सेट फेल हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और 10 to 15 क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम रीजनिंग, तो 30 प्लस 10 to 15 क्वेश्चन कितना हो गया, 45 क्वेश्चन हो गए। ओके, 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, परसेंटेज के, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के, एज के, एवरेज के, इनके सवाल आते हैं जो कि बहुत डुएबल होते हैं। ओके, बहुत डुएबल होते हैं। सो इफ आई ऐड 10 मोर क्वेश्चंस, जो कि वो हो गए अराउंड 55 to 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे दोस्तों। ओके, 50। अगर इन 60 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हैं एंड आप 50 क्वेश्चंस का आंसर मार्क करके आते हैं फ्रेंड्स, अगर आपके 10 सवाल भी गलत होते हैं तो भी आप लिस्ट के अंदर रहेंगे। यू इजीली आप 80 प्लस मार्क्स आपके कोचिंग आंसर की से आ जाएंगे एंड यू विल फील कंप्लीटली सेफ इन सी सेट। स्ट्रेटेजी फॉर अपियरिंग इन द सी सेट एग्जामिनेशन, आपको क्या करना है, पहले 50 मिनट्स के अंदर आपको सारे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं। कितना ही इजी सवाल दिख जाए, सीक्वेंस एंड सीरीज का दिख जाए, परसेंटेज का दिख जाए, कितना ही, जब तक 50 मिनट्स होंगे, पहले 50 मिनट्स सारे कॉम्प्रिहेंशन मार्क होने चाहिए, मार्क होने ही चाहिए। ओके, बिकॉज इंग्लिश डजंट हैव डिफरेंट स्ट्रेटजी। ओके, हाँ, वहां पे टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहा है कि कुछ में अजम्पशन आ रहा है, कुछ के अंदर इन्फरेंस आ रहा है, कुछ के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बट इट इज इंग्लिश। उसमें आपको बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना कि लाइक इट हैज डिफरेंट एप्टीट्यूड फॉर परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडर्स की टेक्निक्स अलग होती है, कि नंबर सिस्टम का अपना अंडरस्टैंडिंग है और एवरेज का अंडरस्टैंडिंग अपना है, ब्लड रिलेशन का अपना अंडरस्टैंडिंग है, सबका अलग अलग है। बट इंग्लिश दोस 30 क्वेश्चंस हैव ओनली वन स्ट्रेटजी, आप रीडिंग, यू हैव टू रीड, और उसको रीड करके आपको कॉम्प्रिहेंड करके आंसर निकालना है। 30 में से 25 सवाल आपके सही होंगे ही होंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके 24-25 क्वेश्चन सही, 24 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे 30 में से, 6 से 7 सवाल आप गलत कर सकते हैं। सो 23 क्वेश्चन इज अ वेरी गुड। देखिए, जब आपका 50 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूं मैं, जब आपके 50 मिनट हो जाएंगे और आप सारे के सारे आरसी मार्क कर दोगे, सो यू विल सी इन योर ओएमआर दैट यू हैव 27 to 30 ब्लैक मार्क्स इन योर ओएमआर। यू विल फील कॉन्फिडेंट कि मैंने 30 सवाल मार्क कर लिए। इन द नेक्स्ट 1 hour 10 मिनट्स आपको 20 सवाल, 20 से 25 सवाल और ढूंढने हैं, जिसके अंदर 15 सवाल तो रीजनिंग के होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज होते हैं, एंड सम डेटा होता है, सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम एज के सवाल होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले सवाल होते हैं, वो आप कर लेंगे। 10 से 15 सवाल आपको मिल ही जाएंगे। ओके, ये 15 सवाल करने के, ये 15 और 10 मैथ्स के सवाल आपको करने हैं, वो इजी टॉपिक्स आप निकाल सकते हैं। दैट इज द थिंग विच यू हैव टू प्रैक्टिस। 50 प्लस क्वेश्चंस आप मार्क करके आते हैं विद कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, 100% आपका सी सेट क्लियर होगा, 100% आपका सी सेट क्लियर होगा। 10 से 12 सवाल आपके गलत होंगे, इससे ज्यादा सवाल गलत नहीं होते हैं मैथ्स के अंदर। अगर आप पेन चलाएंगे और कैलकुलेशन से अगर आप सवाल आंसर निकालते हैं, आपका आंसर 95% सही आएगा। जो इसीलिए मैंने कहा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 30 में से 7 सवाल गलत हो सकते हैं, मैथ्स में और 5 सवाल गलत हो जाएंगे या 6 सवाल गलत हो जाएंगे। 50 में से अगर आपके 13 सवाल गलत होते हैं, यू हैव 37 क्वेश्चंस राइट, विच इज अ वेरी अमेजिंग नंबर, एंड यू विल बी मच अहेड ऑफ द 80 प्लस मार्क्स से आप रहेंगे, और आपका यू विल बी वेरी कंप्लीटली सेफ जोन में रहेंगे। डिफिकल्ट आ रहे हैं, देखिए डिफिकल्ट तो आएगा ही ना। आप डिफिकल्ट आ रहे हैं तो आप एक्सक्यूज, आप बोल रहे हैं सर मेरा मैथ्स भी बेकार है, आप बोल रहे हैं सर मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी डिफिकल्ट आ रहा है, फिर आपके पास तो कोई बचने का कोई जरिया बचा नहीं है ना। सो यूपीएससी हैज गिवन एडवांटेज टू ऑल ऑफ देम। जिसको मैथ्स अच्छा है, फिर वहां पे रीजनिंग के सवाल भी हैं, वहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है जो आप पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। सो देयर इज अ स्कोप फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ओके, सो और यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अब थोड़ा सा बिलो एवरेज तो नहीं चल सकता, आपको एवरेज तो होना ही पड़ेगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको, और रीजनिंग में भी आपको, क्योंकि मैथ्स में भी, क्योंकि सब जगह इजी सवाल होते हैं दोस्तों, उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बहुत ही इजीली सवाल आपको आंसर मिल जाता है। सो आप बोलेंगे कि सर सब कुछ डिफिकल्ट है तो फिर तो काम चलेगा नहीं, कोई ना कोई तो आपको, अगर डिफिकल्ट है तो उसको और स्ट्रांग बनाइए। Sir, I was not able to read Spectrum. Should I do YouTube videos of PWIS? देखिए, किताब पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ी है तो आप किताब पढ़िए, ठीक है। आज आपको रियलाइज होगा, नहीं तो आपको कल रियलाइज होगा प्रीलिम्स के बाद कि किताब पढ़ना बहुत जरूरी था। ओके सर, मुझे यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में देना है, लेकिन मेरे इंग्लिश वीक है, क्या हिंदी मीडियम में तैयारी करके क्या मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। इफ यू आर एबल टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, आप वो
पढ़ सकते हैं, उसमें पेपर दे सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हिंदी में है तो आप हिंदी में पेपर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आप मेरे रोल मॉडल हो। थैंक यू सो मच तपेश, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। एनी अदर डाउट? Sir, what are the three biggest mistakes which should not do? Amazing question, Pawan. Very good question. 3 मिस्टेक्स जो नहीं करनी है। बिना सिलेबस पीवाईक्यू पढ़े आप किताब पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, इज वन मिस्टेक। प्रीलिम्स के अंदर कोर से पहले करंट अफेयर्स को नहीं रखेंगे, इज माय सेकंड मिस्टेक। थर्ड, वेटिंग फॉर द आइडियल डे टू राइट आंसर्स इज माय थर्ड मिस्टेक। स्टार्ट राइटिंग, गंदा लिखना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। ओके सर, डिड यू स्टार्ट प्रिपरेशन आफ्टर कॉलेज? यस, immediately after my college I graduated in 2019 and I started preparation in 2020. Sir, please tell me how can I develop critical thinking, because when I check my answers through ChatGPT of critical thinking, देखिए आप बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी पे रिलाई मत करिए कॉपी चेक करने के लिए। यू कैन हैव अ टेस्ट सीरीज, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो सेल्फ की रखिए। हाँ जी, मैंने बताया शार्दुल आपको कि मैंने कॉलेज के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। यस यस, आई थिंक ऑल द डाउट्स आर डन। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आई होप सर ऑनलाइन मेंटर कौन से बेस्ट रहेगा और टेस्ट सीरीज? आई टोल्ड यू, आई हैव मुझे कभी मेंटर नहीं मिला, मैंने ना मेंटरशिप ली है। टेस्ट सीरीज आई टोल्ड यू, टेस्ट सीरीज मैंने विजन आईएएस की ली है, अभ्यास उससे दिया है। ओके, आई थिंक दैट्स इट। थैंक सर, प्लीज रिप्लाई एनसीईआरटी कंपलसरी। एनसीईआरटी इज वेरी मच कंपलसरी फॉर ज्योग्राफी, हिस्ट्री। एक बार क्यों पढ़नी है आपको, और ज्योग्राफी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न एंड मेडिवल भी आपको पढ़नी ही है डेफिनेटली। दोस्तों, हिस्ट्री के अंदर जो किताब के अंत में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। एटलीस्ट अगर आप लिख नहीं रहे हो उनको, आप तो उनको ढूंढने हैं आपको किताब के अंदर। दैट विल गिव यू अमेजिंग पॉइंट्स एंड अमेजिंग लैंग्वेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड आपको वहां से मिल जाएगा। वर्किंग एस्पिरेंट को कितना टाइम लगता है इफ ही इज स्टार्टिंग नाउ? डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच योर फाउंडेशन इज डन। अगर आप इनिशियली ए से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज यू नो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में आपको समय लगेगा। देयर आर एग्जांपल्स जो वर्क करते करते इन्होंने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में निकाला है। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू आर अलोकेटिंग फॉर द प्रिपरेशन। It is very subjective. ChatGPT is not good in critical thinking. It is very subjective. Working aspirant को कितना टाइम लगेगा? I think I addressed that. आपसे पर्सनली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? पर्सनली कनेक्ट कर आप सोशल मीडिया पे, यू कैन यू नो एवरी मंथ आई विल हैव यू नो डाउट सेशन, तो वहाँ पे आप हम एड्रेस कर सकते हैं इनको। सो आई थिंक दैट्स इट। सर, मैं इंग्लिश थोड़ी पढ़ पाता हूँ लेकिन समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन लिख भी नहीं पाता, तो फिर आप हिंदी से करिए। अगर आप को इतना स्ट्रगल हो रहा है, आप हिंदी से पढ़िए। ली थी ऑफलाइन? ऑफलाइन ऑलवेज। अगर आपको बैटल एक्चुअल बैटल जो आपको है वो जमीन ग्राउंड पे लड़नी है, तो आप ऑनलाइन आप यू नो स्वॉर्ड प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना। गो टू द एक्चुअल बैटल फील्ड एंड प्रैक्टिस देयर। नेट प्रैक्टिस के साथ साथ आपको फील्ड पे खेलना भी बहुत जरूरी है। मेंस में भी नोट्स मैं आपको बताऊंगा, पेन एंड पेपर से ही बनाइए दोस्तों, ऑनलाइन नहीं, क्योंकि बिकॉज योर हैंड इज गोइंग टू गेट हैबिचुअल टू राइटिंग इन कॉपी। ओके, इन हार्ड कॉपी में लिखने का। बुक रीडिंग टेक्निक मैंने आपको बता दी है। पहले पीवाईक्यू पढ़ना है, फिर किताब पढ़नी है, वो चैप्टर पढ़ना है, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना है, फिर किताब पढ़नी है। फाउंडेशन 69% कंप्लीट हो कर लिया है, बट कोई सी बुक्स नहीं पढ़ी। आप किताब पढ़िए, किताब पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मेरे नोट से काम हो जाएगा, लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, डू नॉट लिसन टू देम। आई एम स्माइलिंग ओनली ऑल द टाइम, आई एम स्माइलिंग। आप वीडियो को स्टार्टिंग में देख सकते हैं, मैंने वहां पे बुक लिस्ट उसमें मेंशन किया है। आई एड्रेस्ड ऑल द डाउट्स। किताबें पढ़नी है दोस्तों, डू नॉट यू नो मिस बुक रीडिंग। बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बाद में पता लगेगा। सो आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई थिंक आई हैव addressed all the questions also. I hope you got some insights about how to prepare for CSE. And thanks to this channel, आपसे कनेक्ट करने का मुझे मौका मिला। 30 साल की जरूरत नहीं है यार, आप 20 साल का करिए, बहुत इनफ होगा। 20 साल आप पहले 20 साल का अच्छे से करिए तो सही, वो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
So that's it. Thank you so much. Thank you so much for for connecting, giving your time. I hope the session was beneficial for you. We'll connect on uh, uh, in future also. Thank you so much. All the very best.